Hello, hi there. My name is Muskan, and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see how you people will prepare for MA and MSc entrance exam in geography. So before I will move forward, please do like, share, and subscribe the channel, and never forget to hit the bell icon. So, in this video, we will see what books you are going to prefer for your preparation, and which are the topics where you have to focus more, and PYQs, how many years of PYQs are required for the entrance examination to crack. Uh, and then strategy, what you can adopt to clear the entrance. uh, so guys, first, as I told you, the content, as I told you, is the same. We will see why PYQ is important, how many PYQs you must see, and which topic you must focus more, and which books you should रीड, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको रीड करनी है, एंड देन स्ट्रैटेजी. Then coming to this question that why PYQs is important. जो PYQ है वो क्यों ज़रूरी है? You know, PYQs are important because from PYQ you get the idea, certain idea, that which are the topic are being asked by the examiner in the previous 4 to 5 years and more than that. It depends upon your capacity and interest. आप कितने सालों के जो आप पी वाई क्यूज़ हैं उनको देखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि यू शुड एनालाइज 5 years पी वाई क्यूज़. See them, what are the topic being asked there, from where, and what are their options, right? Not just see the answer of the question, but also see those three options carefully, और उनको एनालाइज करना है. मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किसी भी ऑप्शन से आ सकता है, राइट? सो एनालाइज देम वेरी केयरफुली. what do you get and what do you get as I told you, you get a idea of the topic, right? Importance of PYQs भी मैंने आपको बता दिए हैं. And if you are want to prepare for Himachal Pradesh University entrance exam in geography subject, so in my Telegram channel there are the certain PDF of PYQs. You can reach them. आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से एनालाइज भी कर सकती हैं. एंड आई हैड डाउनलोडेड मोर देन 10 वीडियोज़ ऑन PYQs in my channel, in this very channel, so you can see the playlist. तो वहाँ से भी आपको एक certain idea मिल सकता है, right? During our time we were also looking for the content but was not available. So I had tried to give certain idea. I wouldn't say ki this is the best, but these are the things to give you a certain idea. So I hope now it's clear to you. Then why PYQ is important, right? टॉपिक टू फोकस अपॉन, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपको फोकस करना है. लाइक यू हैव टू फोकस ऑन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पे, राइट? उनसे कौन कौन से जो है वो लैंडफॉर्म्स बनते हैं. लैंडफॉर्म्स अकरेंस लाइक योर फ्लूवियल, your glacial, your fluo-glacial, your crust topography, and your this erosional river है ना. एंड सी लेवल पे कौन कौन से जो है सी कोस्ट पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं. तो सर्टेन आइडियाज़, यू डोंट हैव टू स्टडी इट ऑन डेप्थ, बट यू मस्ट नो. अगर जो है आपके एस्कर है, या फिर मिडोज़ है, या फिर आपके जो मशरूम रॉक्स है, वो कौन से जो है एजेंट से बनती है, या फिर उनके पीछे क्या जो है वो उनके एजेंट्स हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए. देन वेदरिंग आ गया आपका, राइट? एंड देन रॉक्स, रॉक्स को आप बहुत ही अच्छे से जो है वो इन डेप्थ में स्टडी करना. साइकिल ऑफ इरोजन जैसे आपका डेविस का है, पैंग का है, तो
उन पे ज़्यादा फोकस करना है। देन प्लेट टेक्टोनिक एंड रिलेटेड थ्योरी जो भी है, राइट, योर बिग बैंग थ्योरी इज देयर, यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थ्योरी, टू सी देम कि किसने ये दी है, कब दी है, और वो क्या सॉल्व करना चाहता है उससे, राइट। उतनी सी चीज़ आपने देखनी है। अगर उसने नया कुछ किया है तो वो, दैट्स इट। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी का आपको देखना है, राइट। इनके जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आपके ओशंस में भी उतनी ही मतलब इम्पोर्टेंट है जितने के टेम्परेचर जो है वो अर्थ सरफेस पे खासकर, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की देखिए आप कंपोजिशन, उसकी लेयर्स। क्लाइमेट में आपका हो गया कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या फिर थॉर्नवेट की हो गई, लिटिल बिट उसको देखना है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, कौन सा एरिया किसके अंदर आता है। एंड देन क्लाइमेट में ही आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, राइट। यहाँ पे मानसून कब आते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह की रेन होती है, किस जगह में वो किस वक्त पहुँचता है, क्या डायरेक्शंस है, और साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में अगर आता है तो किस वजह से। एंड देन वेजिटेशन, वेजिटेशन आपकी वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी, राइट। लाइक इक्वेटर पे कौन सी होती है, ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट में, टुंड्रा में कौन सी वेजिटेशन होती है, उसी तरह से इंडिया में, राइट। कोस्टल एरिया में कौन सी होती है, आपके प्लेन्स में, माउंटेन्स में कौन सी होती है। देन कमिंग टू ओशन करंट्स, आपके कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स मेनली पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी करंट कौन से ओशन में है वो भी। एंड देन लोकेशन ऑफ द ओशंस आपको पता होनी चाहिए कि किस साइड है, और सी की लोकेशन भी मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, बट जो भी मैं इवन वर्बली भी बता रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है स्लाइड उतना ही इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ वो भी है, राइट। देन थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ्स, चाहे वो डेविस की है या फिर किसी और की है, तो लिटिल बिट उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, बट फॉर योर यू नो वाई यू टेक चांस, तो वो भी देख लेना आपने, राइट। टाइड्स है ना, एंड साइक्लोन्स, कौन सी जगह में साइक्लोन को किस नाम से बोला जाता है, एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन्स क्या है, यू नो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह की डायरेक्शन है, सदर्न में किस तरह की डायरेक्शंस है, साइक्लोन्स कहाँ ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो इस तरह की क्वेश्चंस। और टाइड्स का बात ये है उनके बीच में जो टाइम का गैप कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का भी आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 2001 से 2011 तक पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ आया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कम किसकी है, या फिर कई बारी जो है वो सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट की ज़्यादा है, कौन से कम है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। पॉपुलेशन में ही आई वुड इंक्लूड अर्बनाइजेशन वगैरह, है ना, वो भी इसी वे में पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाएगा अर्बन टाउन कितने हैं, राइट। एंड ऑल दिस सेंसेस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। देन सेटलमेंट टाइप में जो है वो आपके सेटलमेंट पैटर्न हो गए, राइट। या फिर ये वाला सेटलमेंट या फिर अर्बन टाउन किसने प्लान किया था, एंड ऑल दिस। देन रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस में आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। रिमोट सेंसिंग में हल्के फुल्के क्वेश्चंस, राइट, लाइक योर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मेनली। एंड देन लिटिल बिट वो पैटर्न्स पूछते हैं। यार द करेक्ट वर्ड नॉट कमिंग, 8 उसके वो जो है वो फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, जैसे शेप हो गया, पैटर्न हो गया, टेक्सचर हो गया। आई होप यू गेट द आइडिया, बट द प्रॉपर वर्ड इज़ नॉट कमिंग इन माई माइंड राइट नाउ, सो वो सारी चीज़ें। एंड देन फोटोग्राफी हो गया, राइट, पेनक्रोमेटिक एंड ऑल दिस। एंड बाकी जो है सैटेलाइट्स हो गए, उनकी हाइट्स हो गई सैटेलाइट्स की, राइट। एंड प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड ऑल, इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप। यही सब पूछा जाता है। देन जीआईएस में मेनली आपको उतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है, जीएस की फाउंडर या फिर डेटा क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, इस तरह के जो है वो मतलब स्मॉल क्वेश्चंस, इनकी एजेंसीज आप अच्छे से याद कर दीजिए, जैसे
NRSC कहाँ है, हैदराबाद में, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो इस तरह की जो एजेंसीज हैं विच आर लिंक्ड विद दिस रिमोट सेंसिंग और GIS के साथ, तो इनका पता आपको होना चाहिए और इनके हेडक्वार्टर्स क्या कहाँ पे है और ये कौन सा डाटा पब्लिश करते हैं, राइट। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कोलकाता में है, तो वो क्या पब्लिश करता है, दैट पब्लिश टोपोग्राफी मैप फॉर इंडिया, है ना, ये दैट पर्टिकुलर एजेंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखोगे तो फिजियोग्राफी मेनली रिवर्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, राइट, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हो गई, जनरल सी, एंड मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, कौन सा मिनरल कहाँ पे ज़्यादा है, झारखंड में, उड़ीसा में मेनली यहीं की पूछे जाते हैं। एंड देन इंडस्ट्रीज, है ना, फिर आपको कोई सिटी का नाम बता देंगे कि ये किस लिए फेमस है, किस मिनरल्स के लिए फेमस है, तो इस तरह से। देन इंडियन क्लाइमेट, वैसे तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि इंडियन क्लाइमेट में यू हैव टू सी कि जो है इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, राइट ना। और साथ ही साथ वर्ल्ड में अगर कनेक्ट करें तो क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी हो रहा है, तो इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह टाइप का है, मानसून किस टाइप का है, और ऑल दिस, राइट। सॉइल्स एंड ट्राइब्स, ये इकट्ठे ही आ गए, अलग अलग थे। सॉइल्स माने कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है, जैसे एग्जांपल पूछा जा सकता है करेवा सॉइल कहाँ है, तो ये कश्मीर में होती है जो कि सेफ्रॉन के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेटराइट सॉइल कहाँ है इंडिया में, तो इनके स्पेशल डिवीजन आपको पता होने चाहिए सॉइल की, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ब्लैक सॉइल है, इसकी प्रॉपर्टी है कि मल्चिंग, सेल्फ मल्चिंग कैपेसिटी है, यानी कि सेल्फ प्लोइंग कैपेसिटी है इसमें, और राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरह से आपको सॉइल का डिवीजन भी पता होना चाहिए। और जो एनवायरनमेंट साइंस में या फिर बायोजोग्राफी में आप कहें, सॉइल की जो प्रोफाइल है वो भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। एंड जनरल जो क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस माने वर्ल्ड लेवल पे और इंडियन लेवल पे और आपके स्टेट के लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे यानी कि डेजर्ट जो है सबसे हाई टेम्परेचर वाला कहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, राइट, वाटरफॉल सबसे हाईएस्ट कहाँ है, लार्जेस्ट रिवर कहाँ है, दीज आर द जनरल जोग्राफिकल क्वेश्चंस, राइट। कौन सी सिटी को जो है रूर ऑफ मिनरल कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इस तरह की चीज़ें। देन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट से भी पूछे जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपके टाइगर प्रिवेंशन एक्ट हो गया, और आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, वाटर प्रिवेंशन एक्ट हो गए। तो इस तरह के जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट है ये सारे आपको पता होना चाहिए। और मेन जैसे जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपको वो पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट में कौन सी जो गैसेस हैं हार्मफुल है ओजोन के लिए, जो हार्म करती है ओजोन को, वो आपको पता होनी चाहिए। एसिड रेन के लिए कौन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें आपको जनरल इन्वायरमेंट की पता होनी चाहिए, राइट। देन एक जो फूड चेन और फूड वेब आता है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से चलती है। एंड देन नेशनल पार्क आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, इवन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड लाइफ सेंचुरी होगी, है ना। एंड आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वो आपको पता होना चाहिए। देन अगर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हो ज्योग्राफी, तो उसमें ज्योग्राफी में हिमाचल का जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन हर साल देखे गए हैं। तो आपको HP जीके, हिमाचल का जो जीके है वो भी आप देख सकते हैं, राइट। सो ओके, सो हिमाचल का जीके आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बुक यहाँ पे लिखी थी, वो शायद अभी एडिट नहीं हुई थी यहाँ पे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक मिट्ठू करके एक बुक आती है हिमाचल जीके, प्रॉपर नेम वाज नॉट कमिंग बट हिज सन नेम वाज मिट्ठू। तो उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, इट वाज आई थिंक कितनी 40-50 पेज की होगी, उसमें पूरा HP जीके। अदरवाइज यू हैव बलोखला, है ना, द वंडरलैंड, एंड अदरवाइज कुछ आकाश की बुक भी बच्चे मोस्टली वो रीड करते हैं, उतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है बट दैट्स फाइन, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज मैंने हिमाचल जीके पे आई थिंक मोर देन 30 वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ पे आप एक ही वीडियो में शिमला की पूरी जानकारी लोगे, लाइक शिमला जो है वो शिमला की हिस्ट्री, यू विल सी फेयर एंड फेस्टिवल, यू विल सी रिवर्स, you will see
यू नो ट्राइब्स, यू विल सी एवरीथिंग, मतलब शिमला का इन अ ब्रीफ हर चीज़ मैंने उसमें जो है वो इंक्लूड की है। फिर उसके ऊपर एमसीक्यू भी बनाए हैं वीडियोस। तो वो वीडियोस हैं तो काफ़ी लो स्पीड में है, आप उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा। पर आपका, मैं आई कैन गारंटी इट कि आप जो है पूरे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे एचपी के जीके के, वो आप पूरे ठीक करके आएंगे। अगर 15 आएंगे तो 15 में से 14 तो एटलीस्ट करके आएंगे, अगर एक भी भूल जाएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज जो आप मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है, आप उससे कीजिए, आई कैन रिकमेंड यू। बाकी आप वही कीजिए जो आपको सुटेबल लगे। देन कमिंग टू बुक्स, फिजिकल ज्योग्राफी में देखें आप, आता है हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन, क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन, ओशनोग्राफी का और एनवायरनमेंट का। ये सारा का सारा जो है सरविंद्र सिंह की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें है। आप उसको रीड कर लेंगे अच्छे से, उसको रिवाइज कर लेंगे बुक को, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मोर देन इनफ है वो। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी है ज्योग्राफी का, यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट भी है, और कुछ जैसे कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड योर रीजनल ज्योग्राफी, ये चीज़ें भी उसमें कवर की हैं। तो अगर आप इसको कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं तो ये कहूँगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए माजिद हुसैन इज़ मोर देन इनफ। अदरवाइज एक डियर खुल्लर की बुक भी आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, वो भी आप देख सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ अगेन। हिमाचल जीके के लिए जो मिट्ठू में आपको बता रही थी ना, दैट बुक इज़ सफिशिएंट। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब सीरीज़ हैं हिमाचल जीके ऑफ माइन, यू कैन फाइंड आउट दैट इन द प्लेलिस्ट बनी है मेरे ही चैनल में हिमाचल जीके की, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको लग गया होगा पता बुक्स, टॉपिक एंड योर PYQs। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। अब काफ़ी कम समय रह गया है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस होगा ज्योग्राफी का, उसके लिए कम समय रह गया अब तो, आई थिंक 8 to 9 days। सो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इन जनरल भी और वैसे भी, राइट। So analyze PYQs properly. As I told you already, PYQs are best way to analyze and to know ki what are going to examiner put in the exam in the entrance, and how you will prepare yourself in a better way, and you can give that way yourself a good direction, right? सो पहले तो PYQ कंप्लीट कीजिए, आप उनका एनालिसिस कीजिए प्रॉपरली। जो भी टॉपिक आपने आज के लिए डिसाइड किया है कि आज इस दिन में मैंने ये वाला टॉपिक कवर करना है, उसको कंप्लीट करिए। टेबल पे बैठिए, जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक टेबल को छोड़िए मत आप, टेबल और चेयर को, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे पानी है या फिर जो भी आप लेते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़, उसको रखिए साथ में, उठिए मत जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए टॉपिक। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन उसके ऊपर मॉक पेपर या फिर MCQs को एटलीस्ट 10 से 15 जो है उसके ऊपर आप सॉल्व कीजिए। अब एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि जो टॉपिक आपने रीड किया उससे डालेगा। अब क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं, राइट, डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस हैं। तो आपकी एक तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, राइट। कई बार जो हम रीड करते हैं और जो क्वेश्चंस का नेचर होता है, वो दोनों चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। तो आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हाउ वेल यू हैड अंडरस्टूड द टॉपिक एंड कि कितना इन डेप्थ आपको और ये स्टडी करना है, उसके लिए आपको MCQs या फिर मॉक पेपर्स लगाने चाहिए। देन रिवाइज प्रॉपरली। आपने you had covered your topic, you had given mock papers and MCQ जो भी आपने लगा दिए हैं, बट यू hadn't revised, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, राइट। आप भरते गए एंड भरते गए, राइट। जब आया कुछ नहीं, ऐसे ही अगर पेट में डालोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। रिवाइज दैट प्रॉपरली। आप एक
ये बना दीजिए टाइम टेबल अपना कि मैंने इतना टॉपिक करना है और इतने में, या तो रीडिंग से पहले दूसरे दिन में इसको सारा रिवाइज करूँगा, या फिर सोने से पहले इसको रिवाइज करूँगा, या फिर उठने के बाद रिवाइज करूँगा, वट एवर सूट्स टू यू, है ना। बट रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन की प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। राइटिंग मतलब कि जैसे टॉपिक है कोई आपका, उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, आपको नहीं याद रह रहा, आप लिखिए। आप जब लिखेंगे उसको तो नेचुरली आपका हाथ जो है चलने लग जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये था, ये था, ये था, राइट। तो आप जो है इस वे में जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो है अपना मन जो है वो आप बिल्कुल भी छोटा ना करें, घबराएं नहीं, राइट। एंट्रेंस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। अगर क्लियर नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट वर्ल्ड। इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपने जो पेशेंस है उसको बनाए रखें आप, राइट। और अपने ऊपर में एक आत्मविश्वास बनाए रखें कि नहीं, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहें, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे जानबूझ के, राइट। तो उनसे दूर रहना है। बुरी संगत से अकेला भला, राइट। तो जो लोग आप पे विश्वास करते हैं आप उनसे बात कीजिए, राइट। सिट विद योर मदर एंड फादर, दे विल गिव यू गुड डायरेक्शंस। उनके साथ बात कीजिए अगर आपको कुछ मतलब ऐसा स्ट्रेस भी हो रहा है ना। या फिर कुछ पॉजिटिव जो है वो बुक्स रीड कीजिए, कोट्स रीड कीजिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, राइट। सो आप हिम्मत ना हारें, आप बहुत अच्छा करेंगे। सो all the best for your entrance and for your preparation, and thanks for watching. Bye and take care. But the one thing is, don't forget to like, share, and subscribe the channel, because for me also it takes very long time, to write all this content and then make this video for you people. सो आई होप आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इवन डू कमेंट एज वेल, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। ज़्यादा लेक्चर हो गया तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। ओके देन, बाय एंड टेक केयर।